Yeah, good evening, all. Good evening, all. Good evening. Yeah, so this is the second lecture of time value of money that we are taking. Okay, so in this lecture, we will discuss about the annuities and multiple cash flows. In the last video, as you can see on the screen, we have discussed about single cash flow, and the concept is related to the future value of single cash flow, present value of single cash flow, and we have discussed about perpetuity. Okay, and apart from this, I think we have also discussed about the types of annuity. Okay, as you can see here, there are two type of annuity: annuity due and ordinary annuity. So here, what is the meaning of annuity due? So when the cash flows are occurring at the beginning of each year, ओके, जब कैश फ्लोस ईयर के बिगिनिंग पर अगर अकर हो रहे हैं तो हम उसको एन्युटी ड्यू बोलेंगे. और व्हेन द कैश फ्लोज आर अकरिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर देन वी विल कॉल इट एज ऑर्डिनरी एन्युटी. ओके, so I'll take one example here for more clarification. Suppose if you are investing in a saving scheme like $5,000 per annum. Okay, you are investing in a saving scheme $5,000 per annum. Okay, so this amount you are paying as on 31st December of every year. Okay, so it means you are investing your amount at the end of each year. So this is ordinary annuity. This is ordinary annuity. Okay, but when you are investing this amount on 1st January of each year, okay, this will be annuity due. This will be annuity due. Okay, now what is the main difference between annuity due and ordinary annuity? For example, here we have to take one question related to the annuity. So I have framed this question for you. Imagine you plan to invest $200 at the end of each year for 5 years. Okay, in an account that earns an annual interest rate of 5%. So if you are investing at the end of each year for 5 years, so basically this is the annuity that is occurring at the end of each year, and this is a type of ordinary annuity because the cash flows are occurring at the end of each year. Okay, so first basically this is ordinary annuity. Okay, and amount of cash flow is same. रिमेंबर वन थिंग, हम एन्युटी कब बोलेंगे? हम एन्युटी तब बोलेंगे ये जो अमाउंट आप जो कैश फ्लोज जो अकर हो रहे हैं इट शुड बी सेम इन एवरी ईयर. सो इट इज़ सेम एवरी ईयर. ठीक है, अप टू अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स. इफ़ दिस इज़ इंडेफिनिट, दिस इज़ इंडेफिनिट, अगर ये क्वेश्चन में इंडेफिनिट पीरियड दिया हुआ है देन इट विल बिकम परपेचुटी. ओके, जो हम अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. तो अभी ये परपेचुटी नहीं है बिकॉज एन्युटी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए अकर हो रहे हैं और सेम अमाउंट में अकर हो रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. ओके, एंड 5% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है. तो मैं पहले इसको एक जस्ट एक टाइमलाइन बनाकर इस क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूँ, देन हम फॉर्मूले से भी देखेंगे. ठीक है, सो वी आर ड्रॉइंग ए टाइमलाइन. 1 minute. Okay, yeah. So here today basically we are denoting as
T0, this is T1, T2, T3, T4 and T5. सो द प्रेजेंट डे, जो आज का दिन है, हम उसको T0 से डिनोट करते हैं। तो आज तो हमने बेसिकली, अगर हम बात करें, आज 1 जनवरी है, तो आज तो हमने कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है। हम इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज़ T1 पर। सो हियर वी विल इन्वेस्ट $200, ओके। अगेन $200 वी विल इन्वेस्ट हियर, $200 यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, $200 यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, $200 यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अब हमें बात आता है, हमें इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और मेरे से पूछा है कि ये मेरे को जो फ्यूचर वैल्यू बेसिकली निकालना है, ठीक है। मेरे को फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर निकालना है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो जो T1 का है बेसिकली एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज हमने 31 दिसंबर को यहाँ पर एज्यूमिंग कि 31 दिसंबर को हमने यहाँ पर डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा, ओके। सो जो फर्स्ट इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ये वाला जो कैश फ्लो है, इसका इंटरेस्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसका इंटरेस्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसका इंटरेस्ट हमें यहाँ पर मिलेगा और इसका इंटरेस्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इट मीन्स इफ़ यू काउंट दीज इंटरेस्ट, बेसिकली दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो 5 कैश फ्लोज अकर हुए, बट इंटरेस्ट हमको 4 ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट को? येस, वी कैन कैलकुलेट ईजिली। सो सपोज 200 फॉर कितने साल के लिए? 4 ईयर्स के लिए। 200 फॉर 3 ईयर्स के लिए। अगर आप इसको देखें, आउटस्टैंडिंग कितने साल के लिए रहा? दिस इज़ फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। दिस इज़ फॉर 3 ईयर्स, दिस इज़ फॉर 2 ईयर्स एंड दिस इज़ फॉर 1 ईयर, ओके। दिस इज़ फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? अभी तो मैं इसको ऐसे भी कैलकुलेट करा रहा हूँ, फिर उसका फार्मूला भी देखेंगे। तो इसका जो फार्मूला रहता है हमारा, दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसको ए से और डिनोट कर लो, ओके, इनटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर। सो here present value of annuity is $200 into 1.05 because rate is 5% की पावर, एक बार चेक कर लेते हैं, यस यही है, की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.05, ओके। तो जस्ट इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। 1.05 इंटू 1.05 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.05 इंटू 200, सो इट इज़ 1105, इट इज़ 1105 इंटू $12। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, okay. So here you can see that आपको जो यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो बेसिकली फोर कैश फ्लोज पर मिल रहा है। एक कैश फ्लो पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज जो आपने फर्स्ट ये जो इंटरेस्ट आपने यहाँ डिपॉजिट किया है, जो कैश फ्लो डिपॉजिट किया है, वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। तो यहाँ पर पहले साल में कोई इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं क्रेडिट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बट अगर यही क्वेश्चन में बोला होता कि ये जो कैश फ्लोज है ये आपके बिगिनिंग में है, मतलब क्वेश्चन को अगर हम चेंज करें, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला होता कि एंड के बजाय एट द बिगिनिंग है, ठीक है, इफ़ द कैश फ्लोज आर करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो यहाँ पर हमारा ये क्या बन जाता है? यहाँ पर हमारा ये बन जाता है एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू, ठीक है। तो जब ये एन्युटी ड्यू होता है, तो अगेन मैं एक टाइमलाइन यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज को हम बोलेंगे T0, देन T1, T2, T3,
T4 और T5 जहाँ पर हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एन्युटी ड्यू है, यानी हर साल जो है आपको फर्स्ट डेट पर ही जो कैश फ्लो है वो अकर हो रहा है। तो कह रहे हैं इससे कि ये जो $200 है वो यहाँ पर अकर होगा, सेकंड यहाँ पर अकर होगा, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। ओके या तो अभी हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो एट द बिगिनिंग अगर हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो पहले साल में आपका पूरा इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब हम सिंपल इसको लेके चलते हैं, ये कितने साल के लिए आउटस्टैंडिंग रहा, दिस रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर 5 years, ठीक है, फॉर 5 years, दिस रिमेन आउटस्टैंडिंग for 4 years, this remain outstanding for 3 years, okay, then it is for 2 years and it is for 1 year। ठीक है, तो यहाँ पर सारे जो कैश फ्लोज हैं सब पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो आप सीधा सीधा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट फार्मूला। लास्ट क्वेश्चन मैंने नहीं कराया विदाउट फार्मूला, तो आप दोनों में फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, हम अगर सिंपल बात करें, अगर सिंगल कैश फ्लो होता है तो फ्यूचर वैल्यू का सिंगल कैश फ्लो फार्मूला क्या रहता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + R⁴n। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट कैश फ्लो है वो है $200 और यहाँ पर हमारा 1.5% हमारा है, तो 1.05 की पावर 5 बिकॉज इट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग फॉर 5 years, देन प्लस 200 अगेन 1.05 की पावर 4 प्लस 200 1.05 की पावर 3 प्लस 200 इंटू 1.05 की पावर 2 प्लस 200 1.05 की पावर 1। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एंड अनदर वे, बेसिकली वही फार्मूला हमारा। ठीक है, अगर एन्युटी हमारी ड्यू है तो वहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होगा, वहाँ पर हमारा फार्मूला बेसिकली जो पहले वाला था, फ्यूचर वैल्यू, आई एम राइटिंग हेयर, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इनटू 1 + R⁴n - 1 अपॉन R एंड अगेन 1 + R। ओके, सो अगर आप इसको कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो इट इज़ 200 इंटू 1.05 की पावर 5 - 1 अपॉन 0.05 एंड इंटू 1.05 लास्ट। सो दिस विल बी 1.05 इंटू 1.05, 5 टाइम करेंगे, -1 divided by 0.05 into 1.05, okay, and into 200. So here the value is, future value annuity is $1160.38. Okay, so this is the future value when the annuity is kind of due, और जब आपका एन्युटी ऑर्डिनरी था द फ्यूचर वैल्यू इज़ $1105। ओके, ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, एन्युटी ऑर्डिनरी में क्या होता है, 1 ईयर का इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप जो कैश फ्लो जो अकर हो रहे हैं वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर अकर हो रहे हैं, तो जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, और एन्युटी ड्यू में आपको जितने भी कैश फ्लो अकर हुए हैं सारे कैश फ्लोज पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और ये आपका विदाउट फार्मूला आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू 1 + R⁴n। बस आपको ये देखना होगा यहाँ पर कि ये जो कैश फ्लो है कितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग रहा है। ऐसे ही फार्मूला यहाँ पर अगर आप देखें एन्युटी ड्यू के केस में,
तो यहाँ पर 1+r एक कंपोनेंट अलग से ऐड किया गया है, बेसिकली मल्टीप्लाई हुई है जो आपका ऑर्डिनरी वाला था सेम उसमें, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करें, अभी हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया है, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, नाउ सपोज यू वांट टू डिटरमाइन हाउ मच ए सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ $300 at the end of each year for 4 years is worth today given a discount rate of 4%. So basically when we calculate the future value, so you will be given an interest rate or basically the compounding rate, and when you are calculating the present value, then you will have to then you will be given discounting rate. Okay, ठीक है। सो व्हाट इज़ प्रेजेंट वैल्यू, बेसिकली सपोज मेरे को पता है कि मेरे को आज से 5 ईयर्स बाद, 5 ईयर्स लेटर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स सपोज आई नीड ₹10,000, $10,000 आफ्टर 5 ईयर्स। तो मैं तो आज T0 पीरियड पे खड़ा हूँ, मतलब आज प्रेजेंट में हूँ, तो मेरे को इसकी वैल्यू आज लेके आनी है, ठीक है। मतलब फ्यूचर पे जो मेरे को वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को मेरे को आज के टाइम पर लेके आना है, T0 पर लेके आना है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कम निकल के आएगी, ठीक है, अगर हम नंबर्स में बात करें, ठीक है। और जब मेरे को फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, जब मेरे को फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो मैं आज से फ्यूचर की तरफ चलता हूँ, दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू, और दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो जब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो हमको डिस्काउंटिंग रेट दिया होगा, और जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ चलेंगे तब हमको इंटरेस्ट रेट या कंपाउंडिंग रेट दिया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं पहले एक टेबल बना के आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ इसको, और फिर फॉर्मूले से भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एवरी ईयर यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर पेइंग $300 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, और डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 4% है, तो आज उसका वैल्यू कितना आएगा। तो बेसिकली अगर आप टाइमलाइन बना के देखें, ठीक है, तो सिंपल दैट इज़ T0, T1, T2, T3, T4, okay. So you are paying $300 here, $300 here, 300, 300 and 300. So these are future values that you will pay in at the end of first year, second year, third year, fourth year. So basically यहाँ पर हमसे पूछा है कि यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिएगा। ऊपर पहले पूछा था कि अगर आप इतना पहले साल में दे रहे हो, दूसरे साल में इतना दे रहे हो, तो 5वें साल में वैल्यू क्या होगी। अब पूछे है कि अगर T1, T2, T3, T4 यानी हर साल के अंत में आप $300 दे रहे हो, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब हमें अब रिवर्स आना है, ठीक है। तो बेसिकली आज की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकलेगी, मतलब यहाँ पर डिस्काउंटिंग होगा, यहाँ पर भी डिस्काउंटिंग हो, तो यहाँ पर चारों पर डिस्काउंटिंग होगा। तो इसको जब हम डिस्काउंटिंग करते हैं, बेसिकली मैं सिंगल कैश फ्लो की बात करूँ तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1+r⁴n। तो अगर मैं बिना फॉर्मूले के इसको कैलकुलेट कराऊँ तो मेरा फ्यूचर वैल्यू पहला वाला कितना है 300, और यहाँ पर मेरा रेट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट इज़ 4%। कैन आई से 1.04 की पावर 1 फॉर फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड वाला 300 1.04 की पावर 2 प्लस 300 1.04 की पावर 3 प्लस 300 1.04 की पावर 4, ओके। सो you can say 1.104 that is 0.961, so 300.961, it is 312, it is 312 0.924। अगर इनके फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे दैट इज़ 0.924
0.888, 0.854, you can write here 5, this is 0.961, 0.961। बेसिकली मैंने इनके फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं किया मैंने, बेसिकली 1 डिवाइड बाय 1.04 की पावर 1, देन 1 डिवाइड बाय 1.04 की पावर 2, इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो जब मैं 300 को 0.961 से डिवाइड करूँ 312, देन 300 को 0.924 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 324, देन 300 को 0.888 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 337, 337, sorry, let me clear this, ठीक है। we have to multiply this, so 300 into 0.961, बिकॉज मैंने फैक्टर कैलकुलेट कर लिए ना। अगर फैक्टर कैलकुलेट कर लिए तो देन मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पर ये वैल्यू निकाला, ये आया मेरा 0.961, तो ये 1 रुपये की वैल्यू आई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 साल बाद अगर आपको 1 रुपये मिल रहा है तो आज उसकी वैल्यू 96 पैसा होगी। तो अब मेरे को इस 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि मेरे को उसको डिवाइड, क्योंकि या तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूँ इस तरीके से। अगर मैं 1 रुपये की वैल्यू पर फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे को फिर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 300 इंटू 0.961, दैट इज़ 288, सॉरी फॉर दैट। देन 300 इंटू 0.924, 277, then 300 into 0.888, that is 266.4, 300 into 0.855, that is 256.5, ठीक है। सो इसका टोटल कर लीजिए, 288 प्लस 277, 266.4 प्लस 256.5, दैट इज़ 1087.9 इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर आप देखें 4 कैश फ्लोज अकर हुए, दैट इज़ 300, 300, 300, 300, तो टोटल वैल्यू 1200 है। मतलब 4 साल में आप 1200 रुपये, $1200 पे करोगे। बट अगर आज उसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो उसका वैल्यू $1087 निकल के आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ प्रेजेंट वैल्यू। अभी इसका एक शॉर्टकट भी है। आप सिंपल क्या करें, कैलकुलेटर पर 1.104, ठीक है, कि पावर, इसको जब आप करोगे उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो आपका पहले साल का ये वाला वैल्यू आएगा। फिर एक और बार इक्वल प्रेस करोगे तो यू विल फाइंड दिस वैल्यू। देन थर्ड टाइम करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, फोर्थ टाइम करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, एंड लास्ट में आपको GT एक बटन होगा, उसको प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही आप GT का बटन प्रेस करोगे तो इनका टोटल आ जाएगा, वैसे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। सो आई एम टेकिंग हेयर 1 डिवाइड बाय 1.04, 1 2 3 4 एंड GT, सो इट इज़ लाइक 3.629, सो दिस इज़ द टोटल, ओके। तो 3.629। अभी मैं क्या करूं, ये जो 300 जो कैश फ्लो, बिकॉज दिस इज सेम इन एवरी ईयर, दिस इज सेम इन एवरी ईयर, सो वी कैन कैलकुलेट इजीली $300 इंटू 3.629, 300 इंटू 3.629, सो इट इज़ 1088.7, अप्रॉक्स सेम वही वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। वो डेसिमल्स की वजह से थोड़ा सा रहता है, okay. So this is the present value of ordinary annuity. This is the present value of ordinary annuity, because जो कैश फ्लोज हैं वो आपके ईयर एंड पर अकर हो रहे हैं, ओके या। तो अगर इसका फॉर्मूला हमको लिखना है तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, अदरवाइज सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इजी है। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इनटू 1 माइनस
1 प्लस आर की पावर माइनस एन अपॉन आर। ठीक है, तो जो फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला था, ठीक है, वहाँ पर फॉर्मूला था 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो गया, 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन अपॉन आर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन डू लाइक दिस। जैसे 300 इंटू 1 माइनस 1.04 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 0.04. So you do this calculation and you will be able to find the present value of annuity. Is it okay? Yes. So I think we have discussed all the concept. One more concept basically present value. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू के केस में क्या होगा। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के केस है तो सेम आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो बिना फॉर्मूले के भी। वहाँ पर भी एक आपको एक वहाँ पर डिस्काउंटिंग, एक कैश फ्लो का डिस्काउंटिंग कम होगा। ठीक है, और अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला वही है जो पहले था, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, और ये ड्यू की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला रहेगा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, सेम वही, इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन अपॉन आर इंटू 1 प्लस आर। ओके, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इंटू 1 माइनस, सेम वही फॉर्मूला, उसमें 1 प्लस आर आपको एक ऐड कर देना है जैसे आपने वहाँ पर किया था। तो अभी मैं पूरा जो कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो अब तक हमने डिस्कस किया है उसको एक छोटे से स्लाइड पर लाने की कोशिश करता हूँ, पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जस्ट अ मिनट, ठीक है, क्या क्या थे। सबसे पहले हमने फ्यूचर वैल्यू देखा, हमने प्रेजेंट वैल्यू देखा, हमने परपेचुइटी देखा। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू हमने देखे दो टाइप के जनरली। ठीक है, एक सिंगल कैश फ्लो, एक हमने देखा एन्युटी। मल्टीपल कैश फ्लो के केसेस में भी आप एन्युटी की तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर भी सिंगल कैश फ्लो और एन्युटी और परपेचुइटी हमने देखे है। अगर सिंगल कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। यहाँ पर दो टाइप के आपके एन्युटी थे, एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, ड्यू में क्या हो रखा था, ड्यू में हो रखा था कि आपके जो कैश फ्लोज हैं वो ईयर के बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग में अकर हो रहे हैं, और ऑर्डिनरी में आपके जो कैश फ्लोज है वो आपके लास्ट में, ईयर के लास्ट में अकर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली जो फॉर्मूला लगता था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ओके, 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस आर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय आर। ठीक है, अगर ऑर्डिनरी एन्युटी था तो उस केस में ये बेसिकली हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज ड्यू। ठीक है, और यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी और इसको आप दे दो ऑर्डिनरी। तो अगेन फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी सिंपल 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। नो नीड टू राइट 1 प्लस आर कॉम्पोनेंट बिकॉज यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसकी वजह से आप यहाँ पर 1 प्लस आर को ऐड करते हैं, और ऑर्डिनरी में आपको एक इंटरेस्ट कम मिलता है, तो इसलिए आप वहाँ से इस कॉम्पोनेंट को हटा दीजिएगा। ओके, देन कम टू द सिंगल कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है, मैं इसको अगर यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखता हूँ तो ये हमारा था फ्यूचर वैल्यू सिंगल कैश फ्लो का। जब आप प्रेजेंट वैल्यू लेके जाओगे तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू
1 प्लस आर की पावर n। ओके, और अगर एन्युटी है तो सेम वही तरीका जो पहले था, 2 टाइप के एन्युटी होंगे आपके। ठीक है, कौन कौन से? ड्यू और ऑर्डिनरी। ठीक है, तो ड्यू में बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला था, यहाँ पर आपको पहले ऑर्डिनरी हम देखते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी में हमें सारे डिस्काउंटिंग करने होते हैं, यहाँ पर एक डिस्काउंटिंग कम होती है। जैसे यहाँ पर ऑर्डिनरी में क्या हो रखा था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ड्यू में क्या रखा था, ड्यू में यहाँ पर आपको एक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला था, लेकिन यहाँ पर ड्यू में आपका एक डिस्काउंटिंग कैश फ्लो कम होगा। तो यू कैन राइट कि फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू, यहाँ पर ड्यू की बात कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, ओके, 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर -n अपॉन आर। बट जब आप ऑर्डिनरी कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इनटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर n अपॉन आर 1 प्लस आर। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, और एक लास्ट हमने परपेचुटी और डिस्कस किया था। यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला था, एन्युटी को अगर हम रेट से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पर क्या है, परपेचुटी का वैल्यू निकल कर आ जाता है। ठीक है, और परपेचुटी के केस में क्या होता था, परपेचुटी और एन्युटी में जो मेन डिफरेंस है कि परपेचुटी में जो आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं वो फॉर इनडेफिनिट पीरियड के लिए मिल रहे हैं, मतलब वहाँ पर जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है। लेकिन एन्युटी में क्या होता है, एन्युटी में आपको सेम कैश फ्लो, द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इज सेम इन एवरी ईयर। ठीक है, टाइम लैग दोनों में सेम होता है। ठीक है, बट जो मेन डिफरेंस है कि यहाँ पर एन्युटी में एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए आपको आपके कैश फ्लोज अकर होते हैं। ठीक है, लेकिन परपेचुटी के केस में क्या होता है, कैश फ्लोज जो है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए अकर होते हैं। ठीक है, इनडेफिनिट पीरियड मीन्स कि सपोज एक पर्सन है जो 60 ईयर्स का हो चुका है, अभी उसको पेंशन स्कीम से हर साल सपोज 1 लाख रुपए मिलेगा, तो 1 लाख रुपए कब तक मिलेगा, इट इज़ नॉट डिसाइडेड, जब तक वो जिएगा जब तक 1 लाख रुपए उसको मिलते रहेंगे। तो उसकी जो लाइफ है उस पर्सन की, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम उसको परपेचुटी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सेप्ट EMI कैलकुलेशन, सो आई थिंक इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड in this lecture for BB and BCom courses. Okay, so thank you all of you. Let's meet in the next meeting.